Greetings to one and all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। इस संडे सर्विस में आप सब शामिल हुए। प्रेज द लॉर्ड। जितनों ने पहले बार इस सभा में शामिल होने के मनसा करके आए हैं उनको भी स्वागत है। पेनियल चर्च के पास्टर प्रभाकर और एल्डर्स के तरफ से जय मसीह की। इससे पहले कि हम इस सर्विस में जाएं, मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं। भजन 138 1 से लेके अंग्रेजी में मैं पढ़ता हूं। यस, Psalm 138। I will praise you, O Lord, with all my heart. Before the gods I will sing your praise. I will bow down toward your holy temple and will praise your name for your love and your faithfulness, for you have exalted above all things your name and your word. Hallelujah. The Lord is on high. He looks upon the lowly, but the proud he knows from afar. Though I walk in the midst of trouble, you preserve my life. You stretched out your hand against the danger of my foes. With your right hand you save me. The Lord will fulfill his purpose for me. Your love, O Lord, endures forever. Do not abandon the works of your hands. Verse 8, the Lord will fulfill his purpose for me. Your love, O Lord, endures forever. Do not abandon the works of your hands. आइए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुबह समय के लिए। आपके संतों के साथ हम सब इकट्ठे हुए हैं। प्रभु तेरी स्तुति हो दुनिया भर में, जहाँ पर भी आपके आराधना में लोग शामिल हैं, तेरी स्तुति हो परमेश्वर। आपके भजनकार ने लिखा कि आपने अपने वचन को आपने सारे चीज़ों के ऊपर महत्व दिया है। Yes, Lord, you have honored and you exalted your name above every other thing on this earth. Oh yes, your word, you exalted your word. Oh yes, your word, the living word, Jesus, the living word. Thank you, God Almighty. Oh Father, Son, and the Holy Spirit, we worship you, triune God. Thank you for this morning. Bless every little detail that's going to happen. Oh yes, the worship part, the offerings, the prayers, the word. Yes, Lord, you may release the remas. Your servants and ministers be empowered. Thank you. And Lord, you're the God who will fulfill your purpose for us. That's the way you go ahead. Oh yes, we just praise you, and praise you. In Jesus' name we pray. Amen, 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 amen. Now is a time that we step in to worship the living God, and I would call on Sheba to lead us in this. Handing over to Sheba. थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आज के दिन के लिए प्रभु जी, इस समय के लिए प्रभु जी। प्रभु जी आपने सौभाग्य दिया कि आज आपकी स्तुति और आराधना हम कर सके प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी वो सारी आशीषों के लिए प्रभु जी जो आपने हमें अब तक दिया प्रभु जी। प्रभु जी हम जितना भी आपको धन्यवाद दें प्रभु जी वो कम है राजा। धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ और महिमा हो प्रभु जी। प्रभु जी आज हम स्वस्थ हैं, आज हम जीवित हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी आपके अनुग्रह के वजह से प्रभु जी। प्रभु जी कितने भी शत्रु हमें परेशान करें, लेकिन आप हो प्रभु जी जो हमारे प्रोटेक्टर हो राजा। थैंक यू जीसस। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा सफल, तेरे शत्रु
वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। हाँ प्रभु जी, अब तक प्रभु जी, till date, Lord Jesus, you have protected us. You have saved us from all the fallen snares, Lord Jesus. Lord Jesus, we thank you, Lord. We thank you, Jesus. You are our protector, Lord. You are our sanctifier, Lord Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. You are my refuge, my fortress. You are my all in all, Lord Jesus. Thank you, Jesus. आइए हम सब लोग मिलके परमेश्वर की आराधना करें, सच्चे जीवित परमेश्वर की, जो जिंदा खुदा है, जिन्होंने आज तक हमें संभाल करके रखा। ताली बजाते हुए आज
your power, oh Lord our God. Send your power, oh Lord our God. He is the Lord, He reigns on high. He is the Lord, spoken to darkness, created the light. He is the Lord, who is like unto Him, never ending in days. He is the Lord, He comes in power when you call on His name. He is the Lord. Show your power, oh Lord our God. Show your power, oh Lord our God. Send your power, oh Lord our God. मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरे हृदय का राजा हुआ। मैं बना रहूँगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। मैं बना रहूँगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा, जब तक उसका आना न हो। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा, जब तक उसका आना न हो। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरे हृदय का राजा हुआ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्यों ना हम ताली बजाते हुए उस परमेश्वर की आराधना दें, हमारे हृदय का राजा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर अस लॉर्ड। अभी तक प्रभु जी आपने जो कुछ भी किया प्रभु जी, उसके लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। आपके उस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिसने आपने कहा तेरे निकट 1000 तेरे बाएं और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरी हानि ना पहुंचाएंगे। प्रभु जी, हमारे इर्द गिर्द हम जब इस सिनेरियो को देखते हैं प्रभु जी, हमारे चारों ओर बहुत से प्रॉब्लम्स है, बहुत से कन्फ्यूजन है लॉर्ड, परंतु इस सिचुएशन में भी प्रभु जी आप प्रभु जी हमारे साथ खड़े हो, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यू ऑलवेज स्टैंड विद अस लॉर्ड जीसस। प्रभु जी हर समय हर पल आप हमारे साथ रहते हो, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, अगर हम थोड़े टाइम के लिए भी सोचें कि आप अगर 2 सेकेंड के लिए भी, 1 सेकेंड के लिए भी हमारे लाइफ से अगर चले जाओ, तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते प्रभु जी कि वो हमारा लाइफ क्या होगा प्रभु जी। हालेलुया। आइए आज हम क्लेम करें,
हम बोले, अंगीकार करें प्रभु जी, आप ही मेरे खुदा हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरे प्रोटेक्टर हो, मेरी पनाह हो। आज हम सब लोग ये बोले, जैसे हम गीत गाते हैं, जैसे हम वर्शिप के टाइम में एंटर करते हैं, हम सब आज ये डिक्लेयर करें कि प्रभु जी आप ही हमारे सब कुछ हो। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you. Thank you. तू ही है मेरा खुदा, तू ही है मेरा जहां, तू ही है मेरी पनाह, के गए। तू ही है मेरा खुदा, तू ही है मेरा जहां, तू ही है मेरी पनाह, तू ही है तेरे बिना जाऊं कहाँ, तेरे सिवा जीना है क्या, तेरे बिना जाऊं कहाँ, तेरे सिवा जीना है क्या। जिंदगी ये मेरा यकीन तेरे लहू ने इसमें रंग भर दिया, तू ही है मेरा खुदा, तू ही है मेरा जहां, तू ही है मेरी पनाह, मेरा खुदा, तू ही है मेरा जहां, तू ही है मेरी पनाह, तू ही है, तू ही है। Yes, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Lord Jesus, because you are holy, Lord. There is no one else like you, Lord Jesus. प्रभु जी, आपसे कोई कंपैरिजन ही नहीं है, Lord. Lord Jesus, you are omnipresent, Lord Jesus. As we are recording here, we can feel your presence, Lord Jesus. और आपका वचन कहता है, जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे मेरी प्रेजेंस होती है। प्रभु जी, आज आपकी प्रेजेंस यहाँ पर है, और आज हमसे जो लोग कनेक्टेड है, प्रभु जी, मुझे यकीन है प्रभु जी, आपका प्रेजेंस प्रभु जी उस प्लेस में भी होगा प्रभु जी। As we are entering into your presence, Lord, Lord, take us in your arms, Lord Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. I enter the holy of holies, I enter through the blood of the Lamb, I enter to worship you only, I enter to honor I am, I enter the holy of holies, I enter through the blood of the Lamb, I enter to worship you only, I enter
to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy, holy. Lord, for your name is holy, holy. Lord, for your name is holy, holy. Lord, and I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my strength, and I will worship you with all of my might, for you are my Lord. You are my Lord, for you are my Lord. You are my Lord. More love, more power, more of you in my life. Let's declare more love, more power, more of you in my life, and I will worship you with all of my life, and I will worship you with all of my strength, and I will worship you with all of my mind, for you are my Lord. You are my Lord, for you are my Lord. You are my Lord. और प्यार और समझ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और समझ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं करूँगा, स्तुति तेरी मैं गाता रहूँगा। आराधना तेरी मैं करूँगा, स्तुति तेरी मैं गाता रहूँगा। सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा। हाँ प्रभु जी, जैसे प्रभु जी हमने भी गाया प्रभु जी, आराधना प्रभु जी आपकी मैं करता रहूँगा प्रभु जी, जब तक प्रभु जी आपने हमें प्रभु जी इस पृथ्वी पर प्लेस किया है प्रभु जी। हम प्रभु जी हर पल प्रभु जी आपकी आराधना करने वाले होने वाले हो सके प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, अभी तक प्रभु जी आपके प्रोटेक्शन, आपके गाइडेंस के लिए प्रभु जी, हर चीज़ों के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते प्रभु जी। यू डिजर्व आवर प्रेज एंड वर्शिप लॉर्ड, इन जीसस नेम आई प्रे, आमीन। Amen. Amen. Yes, the Lord alone is worthy to be worshipped. Oh, yes.
Worthy to be worshipped is the Lord God Almighty. Amen. Thank you, Sheba, for leading us into this wonderful time of worship. May God bless you and your ministries may prosper. Yes. अब अनाउंसमेंट्स ऐसे हैं, पिछले सप्ताह के सारे आशीषों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हम देते रहें। खास करके इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर ने हमें संभाला, कोरोना प्रॉब्लम से हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, भजन 91 के आशीषें हमारे ऊपर परमेश्वर ने लागू किया। गोशेन प्रांत के आशीषों को परमेश्वर हमारे ऊपर उंडेल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम प्रार्थना करेंगे। कोरोना प्रॉब्लम जो है बढ़ते क्रम में हो रही हैं, परमेश्वर ही इस कार्य को रोक सकते हैं और ज़रूर रोकेंगे। भारत में रिवाइवल के लिए, विश्व में रिवाइवल के लिए हम प्रार्थना करते रहें। हमारे प्रार्थनाओं को परमेश्वर ज़रूर सुन रहे हैं और उचित समय में परमेश्वर इसके उत्तर देंगे। सताए गए कलीसियाओं के लिए परमेश्वर को हम निहारें और परमेश्वर से सहायता मांगें। खास करके उन सताने वाले परमेश्वर को जानें कि परमेश्वर दुष्टों के मृत्यु पर खुश नहीं रहते। वो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए और ज़रूर परमेश्वर इस कार्य को कर रहे हैं। कई टेस्टिमनीज हुए पिछले दिनों में, अभी भी ज़रूर आएंगे कि जिन्होंने सताया था वो परमेश्वर को देखेंगे, ज़रूर टच होंगे, एक स्पिरिचुअल एनकाउंटर उनके जीवन में हो। और परसिक्यूटेड चर्च के लिए भी हम प्रार्थना करते आए। धन्य है वे जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग में उनका पुरस्कार बड़ा है, प्रतिफल बड़ा है। और हमारे बीच में जितनों को बीमारी है, जो हमारे बीच में सिक हैं, यस सिक यानी बीमार हैं, उनको आप ज़रूर याद रखिए। और अभी जैसे वचन की सेवकाई होगी, हम विश्वास करते हैं कि चंगाई परमेश्वर उंडेलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वीकली मीटिंग्स पास्टर जी हमें व्हाट्सएप पे सूचित करेंगे और मैं यही आग्रह करता हूँ कि जितनों को बने। पर्सनल मॉर्निंग ग्लोरी तो सही है, ठीक है, आप कोशिश करिए कि वेडनेसडे मॉर्निंग्स जो सामूहिक रूप में हम गैदर हो रहे हैं जूम पर, पास्टर के उस इन्विटेशन को आप स्वीकारते हुए ज़रूर शामिल होने की कोशिश करिए। ऐसे ही फ्राइडे इंटरसेशन, यस, इसमें भी आप ज़रूर शामिल होने की प्लान बनाइए और परमेश्वर के साथ समय बिताना बाहर 1000 दिन बिताने से भी उत्तम है। एक दिन परमेश्वर के समय बिताना बाहर 1000 दिन से भी उत्तम है। और हम राजाओं के राजा और उस महान परमेश्वर के सामने बातों को जब रखते हैं, इसमें एक ब्लेसिंग भी है। आप उनके साथ पार्टनर होके प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं। यस, ये अनंत काल और विश्व में चीज़ों को बदलने के एक कार्य में आप शामिल हो रहे हैं। ज़रूर शामिल होइए। अब बर्थडेज ऐसे हैं आज के दिन। अंकित, मिस्टर अंकित, यस, वी विश यू अ हैप्पी बर्थडे। और 31 को ब्रदर डैनी, 1 को मिस जेनिफर आशर, 3rd को मिस संगीता चौधरी, 4th मिसेस विमला, 5th मिसेस सरकार, मिस शर्ली सोलमन और मिस्टर अजय चौधरी। God bless you all. Yes, greetings to all of you who are having their special days this week.
पास्टर की तरफ से और चर्च की तरफ से गॉड ब्लेस यू। एंड देन अभी यदि आपके नाम नहीं बोला गया और आप स्पेशल डेज मना रहे हैं, यस, आप पास्टर को ज़रूर सूचित करिए और पास्टर इन्फॉर्म करेंगे, हम सब प्रेयर ज़रूर करेंगे। गॉड ब्लेस यू। अब उन लोगों को फिर हम स्वागत करते हैं जो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन सर्विस में शामिल हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ जॉइन टाइम एंड अगेन। आई एम श्योर द लॉर्ड विल स्पीक टू यू। और अभी हम हमारे रिक्वेस्ट और प्रेयर्स को आप उस नंबर जो इस सभा के अंत में फ्लैश किया जाएगा उसमें ज़रूर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने प्रेयर्स, अपने जो दिल में जो कार्य हुआ है बता सकते हैं। पास्टर ज़रूर नोट करेंगे और इससे बढ़कर पास्टर परमेश्वर आपके उन बातों को सुनने के लिए तैयार हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। अब हम वचन के पाठ पढ़ेंगे। दानियल नामक पुस्तक, उसके पहले अध्याय 8 से 15 तक। डैनियल चैप्टर 1 वर्सेस 8 थ्रू 15 मैं हिंदी में पढ़ूंगा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरे मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे तो तुम मेरे सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियल ने उस मुखिए से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्या, मिशाएल और अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। यहाँ पर पाठ समाप्त हुआ। प्रेज द लॉर्ड। अब हम प्रार्थना में जाएंगे। महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सभा के लिए, धन्यवाद देते हैं एक एक कार्य के लिए। भारत में आप रिवाइवल को लाइए, कोरोना को आप रोकिए। यस लॉर्ड, आप सामर्थी हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। दया करिए परमेश्वर। आपके दासों के और बच्चों के प्रार्थनाओं को आप सुन रहे हैं परमेश्वर, इस कार्य को करिए। हमारे भारत के प्रजा, हाँ प्रभु, मर रहे हैं, दया करिए प्रभु, दया करिए, दया करिए। अब हम प्रार्थना करते हैं विश्व में भी जहाँ जहाँ उथल पुथल मची है, ओ यस, आप हस्तक्षेप कीजिए परमेश्वर, दया करिए। आपकी ओर से एक शांति मांगते हैं, एक चंगाई मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं पिछले 4 महीने से
हाँ प्रभु, आपके लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, हाँ प्रभु पश्चाताप कर रहे हैं। इन विषयों को आपने सुना है प्रभु, देखा है, और ज़रूर आप उत्तर भी दे रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हाँ प्रभु, अभी हम प्रार्थना करते हैं परसिक्यूटेड चर्च के लिए, सताए गए आपके दया के लिए। आप उनको इस्तेमाल करके इस दुनिया में आप एक नए आयाम में कार्यों को लेने वाले हैं, एक रिवाइवल को आप लाने वाले हैं, क्योंकि शहीदों के खून चर्च के लिए एक बीज है करके हम अंगीकार करते हैं इस लॉर्ड, क्योंकि खून चिल्लाता है ज़मीन से। आप इस कार्य को ज़रूर सुनेंगे और समय पूरा होने तक इस लॉर्ड उन शहीदों के संख्या पूरे होने तक आप छोड़ेंगे। फिर भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन सताए गए लोगों पर आपके सामर्थ उतरे, सताने वालों को आप छूइए, दया करिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। अभी हम प्रार्थना करते हैं जितने हमारे बीच में बीमार हैं उन्हें आप चंगाई दीजिए, जो एग्ज़ाम्स के टेंशन ले रहे हैं प्रभु उनको भी आप छूइए, और जो भविष्य के विषय में चिंतित हैं उन्हें भी आप ज़रूर ये कहते हैं शालोम, कहते हैं शालोम। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। आगे के सत्र को संभालिए, भेंट के सत्र को संभालिए यस लॉर्ड। अभी हम प्रार्थना करते हैं जितनों को आपने तैयार किया भेंट देने के लिए, इस भेंट के सत्र पर आपके आशीष मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब आपके दासी फिर गीत गाएगी, होने दे कि लोग उभरे जाएं और इस भेंट के कार्य में अपने उत्तम से उत्तम कार्य दे सकें। यस लॉर्ड, हम अपने आप को भी एक भेंट के रूप में चढ़ाते हैं। ओ यस, आपका स्वीकार कीजिए। आगे प्रभु जब आपके दास वचन परोसते हैं, यस लॉर्ड, होने दे कि आपको महिमा मिले, आपको महिमा मिले, आपको महिमा मिले। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। सकरा है, खुदा का थामे रहना हाथ रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रहना हाथ रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की तुम सुनना रास्ता सकरा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की तुम सुनना रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रहना हाथ रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रहना हाथ रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। So greetings to you all in Jesus' name, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिनंदन। and we
believe that God has been blessing you and speaking to you. हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा होगा, परमेश्वर आपसे बात कर रहे होंगे And your walk with the Lord is blessed day after day. और आपका जो चलना है परमेश्वर के साथ प्रतिदिन वो प्रतिदिन आशीषित होता जा रहा होगा You are blessed with the presence of God as well. और आप परमेश्वर की उपस्थिति से भी आशीषित होंगे And we trust that Holy Spirit is your best friend. और हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आपका सच्चा और उत्तम मित्र है He will guide you into all truth. और वो आपको सारी सच्चाई के अंदर में लेके जाएगा। Come, let us pray for today's word. और आइए आज के दिन के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम में we come to your throne of grace. हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं Prepare every heart and every mind. और हर एक हृदय हर एक मन को आप तैयार करें। Only you can speak to us. सिर्फ आप हमसे बात कर सकते हैं। No man's word, किसी भी मनुष्य के वचन but let नहीं, the word of God, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन but let the voice of God be heard this day. और परमेश्वर की आवाज आज के दिन सुनी जाने Let your पाए word bring in the hearts and minds of people. और आपका जो वचन है लोगों के हृदयों में और लोगों के मनों के अंदर में लेकर आ जाए। Whatever you want to do, you do, Lord. जो कुछ भी आप करना चाहते हैं परमेश्वर आप करें And your word bring forth fruits in the name of Jesus. और आपका जो वचन है यीशु मसीह के नाम में फल को लेकर आए Let this word be sealed by the Holy Spirit. और ये जो वचन इसके ऊपर पे पवित्र आत्मा की छाप लग The जाए convicting power of the Holy Spirit be at work. और पवित्र आत्मा की कायल करने वाली सामर्थ कार्य करे And God's name alone be और glorified. सिर्फ परमेश्वर का नया महिमा पाए And cover us under the blood. और हमें अपने लहू में आप छुपा Keep us लीजिए behind the cross. और उस क्रूस के पीछे में छुपा रखिए You alone be glorified, Lord. और सिर्फ आप प्रभु महिमा पाए In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांग लेते हैं Amen. आमीन। Amen. So आमीन। greetings to you all again in the name of Jesus. और एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको नमस्कार We are glad that we are able to gather again on this YouTube. और एक बार फिर हम बड़े खुश हैं कि हम आपसे YouTube पे मिल पा रहे हैं I just want to give you a promised words found in the book of Jeremiah chapter 20 verses 11 and 12. और मैं आपको प्रतिज्ञा का जो वचन है जो यिर्मयाह की किताब उसका 20वां अध्याय उसके 11 और 12 पद में पाया जाता है Maybe we read 10 and 11th verse. और हम 10 और 11 वचन को देखेंगे For I heard many mocking, fear on every side. Report, they say, and we will report it. All my acquaintances watched for my stumbling, saying, perhaps he can be induced. Then we will prevail against him, and we will take our revenge on him. For the Lord is with me as a mighty, awesome one. Therefore, my persecutors will stumble and will not prevail. They will be greatly ashamed, for they will not prosper. Their everlasting confusion will never be forgotten. मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी है, चारों ओर भय ही भय है। मेरी जान पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने की बाट जोते हैं, वे कहते हैं उसके दोष बताओ, तब हम उनकी चर्चा फैला देंगे। कदाचित ये धोखा खाए तो हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। परंतु यहोवा मेरे साथ है, वो भयंकर वीर के समान है। इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे, वे ठोकर खाकर गिरेंगे। वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला ना जाएगा। Amen. So may God bless you through this promise. और परमेश्वर इस प्रतिज्ञा के द्वारा से आपको आशीष दे। Let the God be with you, awesome God. और ये जो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर के समान आपके पास आ जाए। Today I want to share with you about crisis management. और आज के दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो संकट के समय उसके अंदर में हम किस तरह से व्यवहार करें। Or disaster management. और कोई त्रासदी जो होती है उसके अंदर में हम किस रीति से बातों को संचालित We करें। know the world is in a crisis और हम जानते हैं ये संसार एक संकट में है because of COVID-19. और कोविड-19 के कारण से। And because of COVID-19 there is economic recession. और कोविड-19 के कारण से आर्थिक मंदी है। So there is crisis in the nations. और राष्ट्रों के अंदर में इस तरह की संकट की घड़ी है। There is crisis in the churches. और कलीसिया में संकट है। There is crisis in the families. और परिवार में वो संकट का There समय is है। crisis even in our individual life. और यहाँ तक कि हम जो व्यक्ति
व्यक्तिगत जीवन में, हमारे जीवनों में भी वो संकट का समय है। But we can understand from the scriptures, from the Bible, लेकिन हम बाइबल में से इस बात को समझ नहीं पाते that हैं। Bible is the best textbook for crisis management. और जो बाइबल है संकट के समय में उससे निपटना कैसे, वो सबसे उत्तम एक किताब है जो बताती है। There are many books that are written for management of crisis and disasters. और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो लिखी गई कि किस तरह से संकट के समय में आप उसमें से आप निकल सकते हैं, उसका समाधान कर सकते But हैं। I want to tell you, this is the best textbook that you can find in this earth. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बाइबल सबसे उत्तम पाठ्य पुस्तक है जो आप इस पृथ्वी के ऊपर में पा सकते हैं। And God has given us this book. और परमेश्वर ने हमें ये किताब को दिया It है will help you to come out of every kind of crisis. और ये आपकी सहायता करेगा कि आप हर तरह के जो संकट का समय उसमें से आप बाहर निकल कर आ जाए। Today you are hearing this message. आज आप इस संदेश को सुन रहे हैं। Maybe you are in the midst of a crisis. हो सकता है कि आप एक संकट के समय में बीच में फंसे हुए हैं। Maybe you have just come out of a crisis. हो सकता है कि अभी भी आप हाल ही में उस संकट में से बाहर निकल कर That आए does हैं। not mean crisis will not come again. और इसका मतलब ये नहीं कि वो वापस संकट का समय आपके जीवन में नहीं आएगा। Maybe you are about to enter into a crisis, हो सकता है कि अभी ऐसा होने वाला हो कि आप संकट में प्रवेश करने but वाले you हो, don't know about it लेकिन आप उसके विषय में जानते नहीं because हो, we don't know about our future. क्योंकि हम अपने भविष्य के विषय में नहीं जानते हैं। Crisis can be caused because of various reasons. और ये जो संकट है हमारे जीवन में किसी भी बहुत सारे कारण जिसके द्वारा से आ सकते हैं। The major reason is because of our sin or disobedience. और मुख्य कारण है हमारे पाप या हमारी अनाज्ञाकारिता के We कारण। know because of Adam and Eve's sin, the disaster or crisis came upon humanity. और हम जानते हैं आदम और हव्वा के कारण से पूरी मानव जाति के ऊपर में एक बड़ा संकट आ गया। We know when Jonah disobeyed God and ran away from और हम God, जानते हैं जब योना ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके उसकी उपस्थिति से भागा, the people in the ship he was traveling with had to face a crisis. और वो जो लोग के साथ उस जहाज में यात्रा कर रहा था वो तमाम लोगों ने संकट का समय का सामना किया। And we know because of his sin or disobedience, they had to face that disaster or that crisis or that storm. और हम इस बात को भी जानते हैं कि योना की अनाज्ञाकारिता के कारण से, उसके पाप के कारण से जो लोग उसके साथ जहाज में थे उन्होंने एक बड़ी आंधी और एक तूफान का सामना किया। Maybe in our lives we are in a crisis because of our sins, our disobedience, our foolishness. हो सकता है कि हम हमारे जीवन के अंदर में हमारी अनाज्ञाकारिता के कारण से, हमारे पापों के कारण से, हमारी मूर्खतापूर्ण बातों के कारण से हम संकट में पड़ गए The हैं। Bible also speaks about we have done foolishly, the Bible says. और बाइबल ये भी बताती है कि हम बुद्धिमानी से कई बार कार्य नहीं करते हैं। Okay, so that's why we face a crisis or disasters. और इस कारण से हमारे जीवनों में हम संकट का सामना करते And हैं। another reason it is because of Satan. और दूसरा एक और कारण है वो शैतान है। We know the crisis that came upon Job's life. और हम जानते हैं कि जो संकट का समय अय्यूब के जीवन पर आया, That was because of Satan. और वो शैतान के कारण से था। Satan got permission from God to test Job in all those different ways. और शैतान ने अनुमति लिया परमेश्वर से कि अय्यूब की उन विभिन्न क्षेत्रों के अंदर में वो परीक्षा करे। Job was a righteous man. और अय्यूब जो था एक धर्मी व्यक्ति था, God himself testified about और him. परमेश्वर स्वयं उसके विषय में गवाही देते हैं। Today you may be leading a righteous life. हो सकता है कि आज के दिन आप एक धर्मी जीवन जी You रहे हो, are obeying God and His commandments. आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, But still you are in a crisis. लेकिन फिर भी आप एक संकट के समय में So हैं। Satan can be another reason for our crisis. और हो सकता है शैतान तो एक कारण हो आपके जीवन में संकट की इस घड़ी के लिए। And we know that the disciples of Jesus Christ, Jesus told the disciples, और हम जानते हैं यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, come let us go to the other side. आओ हम झील के पार चलें। And we know there was a storm in between. और हम जानते हैं कि उस रास्ते में एक बड़ी आंधी तूफान उठा And Jesus was sleeping. और यीशु मसीह सो रहे थे। Another time Jesus told his disciples, you go to the other side. और एक और बार ऐसा हुआ कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम झील के पार जाओ। This time Jesus did not travel with them. और इस बार यीशु मसीह उनके साथ यात्रा में नहीं Again गया they faced a storm. और फिर से उन्होंने आंधी तूफान का सामना किया। Okay,
we can say, you know, actually the 4th chapter of Mark's Gospel, और मरकुस के रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय में देखते हैं, we read about a storm that they faced. और हम उस आंधी तूफान के विषय में देखते हैं जिसका उन्होंने सामना किया। I personally believe, मैं व्यक्तिगत रीति से विश्वास करता if you हूँ, read the 5th chapter, अगर आप 5वें अध्याय को पढ़े तो we read about a demon-possessed man. हम वहाँ पर एक दुष्ट आत्मा ग्रसित एक व्यक्ति के विषय पढ़ते हैं, He was having almost 6,000 evil spirits. और उसके अंदर में 6000 दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी। Because when Jesus asked him, he said, I am a legion. क्योंकि यीशु मसीह जब उससे पूछा तो वो उन्होंने कहा कि मैं सेना हूँ। Because in Roman legion there used to be 6,000 soldiers. क्योंकि रोमी एक सैन्य टुकड़ी के अंदर में 6000 सैनिक होते हैं। And because Jesus was to cast out those demons, और क्योंकि यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालने पड़ता, maybe those demons did not want Jesus to come. और हो सकता है कि वो दुष्ट आत्माएं नहीं चाहती थी कि यीशु मसीह उनके पास आए। That's why in the 4th chapter of Mark we read about a storm that attacked them. और इस कारण से हम मरकुस रचित समाचार के 4थे अध्याय में देखते हैं कि बड़ी आंधी तूफान आकर उनको संकट या उनके ऊपर आक्रमण करता है। So it can be because of our own personal sins. और ये हो सकता है हमारे खुद के व्यक्तिगत पापों के कारण, It can be because of Satan. और हो सकता है शैतान के द्वारा And से, maybe it can be because of others. और नहीं तो हो सकता है दूसरों के कारण से। You know, the people who were traveling with और Jonah हम देखते हैं कि जो लोग योना के साथ यात्रा कर रहे हैं, had to face the storm उनको उस आंधी तूफान का सामना करना पड़ा, not because of their sins, उनके पापों के कारण नहीं, not because of Satan, और शैतान के कारण नहीं, but because of Jonah. लेकिन योना के कारण से। Even in the 27th chapter of Acts, और यहाँ तक कि प्रेरितों के हम 22वें अध्याय में हम देखते हैं, 27th और chapter, 27वें अध्याय में हम we देखते हैं, read that Paul was traveling to Rome, और हम देखते हैं कि जो पौलुस से रोम की यात्रा के लिए निकला था, and there were 276 passengers in that ship, और 276 यात्री उसके साथ जहाज में थे, and at one port Paul said, और एक जगह जाके पौलुस कहता है, let us not travel now, और वो कहता है कि अब हम आगे को भी यात्रा ना करें, because he had an intuition or a revelation from God. क्योंकि उसको परमेश्वर से प्रकाशन मिल गया था, समझ गया था कि क्या होने वाला The है। climate was so good. लेकिन मौसम इतना अच्छा था, The captain said, no, the climate is so good, so let us travel. और जहाज का जो कप्तान था वो कहने लगा, नहीं मौसम बहुत अच्छा, हम इस पे यात्रा कर But सकते on the हैं। way we know that there was a great storm. और लेकिन हम जानते हैं मार्ग में एक बड़ा आंधी तूफान आया, They tried to manage that crisis, और उन्होंने कोशिश करा कि संकट के पार निकल जाएं, and they had to throw away all the cargo. और उनका जितना भी संपत्ति था, जितना भी उनके पास सामान था, उस सबको उन्होंने समुद्र में फेंक And you दिया। know, eventually the entire ship was broken down. लेकिन हम देखते हैं आखिर में इस समय कि पूरा जहाज टूट गया। But the Lord told Paul, लेकिन प्रभु ने पौलुस से कहा था, none of you will lose your life. और तुम में से किसी के भी प्राण की हानि नहीं So होगी। all the 276 passengers were saved. और इसके सारे के सारे 276 यात्री जो थे वो सुरक्षित थे। This crisis was because of the captain. और ये जो संकट का समय था इस कप्तान के कारण से आया So था। I don't know what crisis you are in. और आज मैं नहीं जानता कि आप कैसे संकट में से होके गुजर I रहे हैं, don't know why you are in this और crisis. मुझे ये भी नहीं पता कि आप किस कारण से इस संकट में But हैं। I want to encourage you लेकिन मैं today. आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, This Bible और ये जो बाइबल है, and God of this Bible और इस बाइबल का जो परमेश्वर है, as an answer for your crisis. आपके सारे संकट का उत्तर उसके पास है, He will enable you to overcome this और वो crisis. आपकी सहायता करेगा कि आप इस सारे की संकट की घड़ी में से पार चले We जाएं। are not in this world to survive, but we are in this world to triumph. और हम इस संसार में इसीलिए नहीं है कि हम सिर्फ अपने जीवन को जी ले, लेकिन इसलिए कि हम एक जयवंत जीवन को जिए। We are not victims, but we are victors. और हम इसलिए नहीं है कि हम किसी भी चीज के अंदर में विक्टिम हो जाए, लेकिन हम इसलिए कि हम उस पर जय प्राप्त करें। Our life is not meant to be a mess, but our life is meant to be a message. और हमारा जो जीवन है गड़बड़ियों भरा नहीं, लेकिन हमारा जो जीवन है संदेश भरा हुआ है। So whatever crisis you are right now in, और आज चाहे आप किसी भी तरह के संकट में क्यों ना हो, maybe you are not in a crisis now, maybe you may enter into crisis. हो सकता है कि आज आप संकट में ना हो, लेकिन आप संकट में होके जाने वाले And I होंगे। want to tell you, as long as we are on the face of this और मैं आपको earth, बताना चाहता हूँ जितने साल आप इस पृथ्वी पर हैं, we will be facing crisis after crisis. और आप संकट के बाद संकटों को सामना It करेंगे। is not one crisis is stopped, is finished, then you are not going to face any more crisis. और ऐसा नहीं है कि ये संकट समाप्त हो जाए तो हम आगे जीवन को दूसरे संकट का सामना नहीं करेंगे। But all these different kinds of crises
make us a better person. लेकिन ये जितने भी तरह की संकट का समय हमारे जीवन में आता है वो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। And I want to share with you from the scriptures. और मैं आपको वचन में से बताना चाहता हूँ। We can say from Genesis 1:1 to Revelation 22 and verse 21. और मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्पत्ति 1:1 से लेके प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय 21वें पद तक We can see many case studies of crisis management. और हम इस संकट का जो प्रबंधन है उसके अंदर में कई ऐसे केस स्टडीज को पढ़ सकते हैं। And some people really became very victorious. और कुछ लोग तो वाकई में जयवंत हुए। But many people faltered or they failed as well. लेकिन बहुत सारे लोग असफल हो गए या गिर गए। And many times God came to the rescue of the people whenever they were in crisis. और जब कभी भी संकट का समय होता था कई बार परमेश्वर उनकी सहायता उनकी छुड़ौती के लिए आया। And many times people went to God when they were in crisis. लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि जब लोग संकट में थे तो वो परमेश्वर के पास गए सहायता के लिए। Sure, sometimes people went to other sources also to manage their crisis. और हाँ कई बार ऐसा हुआ कि लोग दूसरे स्रोतों के पास भी गए ताकि अपने संकट का वो प्रबंधन कर And they सके। failed very miserably. लेकिन उनको बहुत ज्यादा असफलता उनके हाथ And लगी। one example is Saul. और एक बहुत अच्छा जो उदाहरण है वो शाऊल का। Saul, the first king of Israel. और शाऊल जो इज़राइल का पहला राजा था। He very badly failed in his life. और वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा असफल हो गया। Though God appointed him, ordained him to be the king of Israel. और इसके बावजूद कि परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया उसे नियुक्त किया इज़राइल के राजा होने के लिए। But he failed. लेकिन वो असफल हो गया। And God was displeased on Saul. और जो परमेश्वर था वो शाऊल से अप्रसन्न हुआ। And when he was in a crisis. और जब वो संकट के समय में था। And he was not having any answer. और उसके पास जब कोई उत्तर नहीं था। He went to a witch. और वो एक जादूगरनी के पास गया। And we know what happened in his life. और हम जानते हैं वो उसके बाद उसके जीवन में क्या The हुआ। very next day he was killed in a battle. और दूसरे दिन उसको जो है एक युद्ध भूमि में वो मर जाता है। But then we know many people came to God. लेकिन हम जानते हैं बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास आए। As we heard last week that Jehoshaphat and all the people of Judah they sought after God. और जैसे पिछले हफ्ते हमने सुना कि यहोशापात उसके प्रजा के सारे लोगों ने परमेश्वर को खोजा। And we know how they got a victory. और हम ये भी जानते हैं कैसे उन्हें बड़ी जय हाथ प्राप्त हुई है। Today God wants to give every one of us victories. और आज के दिन परमेश्वर हमें से हर एक जन को जय देना चाहता But है। the question is, are you spiritual or carnal? और लेकिन प्रश्न ये है कि आप आत्मिक हैं या आप शारीरिक हैं? Do you want divine answer or a human answer? और क्या आप एक ईश्वरीय उत्तर चाहते हैं या मनुष्य का उत्तर चाहते Are हैं? you looking for divine solution or a human solution? और क्या आप परमेश्वर की ओर से हल चाहते हैं या मनुष्य की ओर से हल चाहते हैं? You just want to survive or you want to triumph? और आप सिर्फ कैसे भी जीवन चल जाए या जीवन बच जाए उसके लिए या आप जयवंत जीवन चाहते You हैं? want to be defeated or to be a more than और conqueror? आप हार जाना चाहते हैं या जयवंत से भी बढ़कर होना चाहते It हैं? depends upon you and me. और ये आप पर और मेरे ऊपर पे निर्भर But करता है। many times we blame God. लेकिन कई बार हम परमेश्वर पे दोषारोपण करते Like हैं। Naomi, और जैसे नबोमी थी they were in the city of Bethlehem. और वो बैतलहम नगर में थे That means house of bread. और उसका जो नाम था वो था रोटी का घर। That means they had bread in that place. और उसका मतलब ये था कि उस स्थान में उनके पास रोटी थी But there was famine. लेकिन वहाँ पे बड़ा अकाल पड़ा। When there was famine, और जब वहाँ पे अकाल पड़ा instead of coming to तो God, परमेश्वर के पास जाने के they बजाय went to और Moab. वो मोआब देश को चले And गए they lived in Moab for 10 years. और 10 साल तक वो मोआब में रहे। During those 10 और years, उस 10 सालों के दौरान we know Naomi's husband और हम जानते हैं नवमी का पिता पति and both the sons of Naomi, और नवमी के दोनों बेटे they all died. और वो सब मर गए। And then now Naomi was returning with Ruth. और नवमी अब अपनी बहू रूत के साथ वापस लौट रही And थी। then you know what she was telling the people? और बताइए वो क्या कह रही थी लोगों से? When people were asking, is it not Naomi? और जब लोगों ने पूछा कि क्या ये नवमी नहीं है? Because she was very much disfigured. क्योंकि वो उसका रूप पहचाना नहीं जाता था। Because she had gone through so much of crisis and problems. और इतना अधिक उसने समस्या परेशानी और संकट देखा She था। faced 3 deaths. और उसने 3 मृत्यु का सामना करा। Then she said, और फिर वो कहती है, don't call me वो Naomi. कहती मुझे नवमी कह के मत Naomi पुकारो। means pleasant or desirable. और नवमी का मतलब है मनमोहक या अच्छा अधिक चाहा गया। But call me Mara. लेकिन वो बोलती मुझे मारा कह के Because पुकारो। all my
Almighty has afflicted me. क्योंकि उस परम प्रधान ने, उस सर्वशक्तिमान ने मुझे मारा है। But it was not God who afflicted her. लेकिन वो परमेश्वर नहीं था जिसने उसे ताड़ना दी थी, It was their mistakes. लेकिन वो उनकी गलतियां थी। So many times we blame God for our mistakes when we face crisis. कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी गलतियों के कारण से हम परमेश्वर पे दोष लगाते हैं जब हम संकट में पड़ जाते That's हैं। why some places in the Bible we can read, I have done foolishly. और इसलिए कई स्थानों में बाइबल में पढ़ते हैं कि मैंने मूर्खतापूर्ण कार्य किया है। Here and says in the 11th chapter of Numbers, I have spoken foolishly. और गिनती 11 में आरोन कहता है कि मैंने मूर्खतापूर्ण बात करी है। And David says, I have done foolishly. और दाऊद कहता है कि मैंने एक मूर्ख सा काम किया So है। it is good that we apologize to God. We acknowledge our sins before God. और ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने पापों की क्षमा मांग ले, अपने पापों का अंगीकार कर ले परमेश्वर के So सामने। you are in a crisis today. और आज आप एक संकट के समय Come में to God. आप परमेश्वर के पास Tell him, आए Lord, maybe I have sinned. और आप परमेश्वर से कहे मैंने पाप किया, Forgive me. मुझे क्षमा करें। And have a right relationship with और God. परमेश्वर के साथ आप एक सही संबंध And बनाए। see the hand of the Lord upon और you. परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में देखें। Whatever may be your crisis, आपकी you चाहे कैसी भी संकट का समय can see क्यों ना the victory of हो, आप God. परमेश्वर की जय को देखें। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। God is the same yesterday and today and और forever. परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा है। Today I want to bring to your notice the event or the incident that took place in Daniel. और मैं आज के दिन वो जो बात दानियेल के जीवन में घटी उसको लेकर आना चाहता We हूँ। know that the people of Judah, they rebelled against और God. आप जानते हैं कि जो योदा के लोग हैं उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया। So God already prophesied. और परमेश्वर ने वहाँ पे भविष्यवाणी किया। Sure, God had been sending many prophets और हाँ, परमेश्वर ने कई भविष्यवक्ताओं को भेजा and telling them repent. और उसे कहा कि मन फिराओ, But they were not repenting. लेकिन वो तैयार नहीं थे कि मन फिराएं। At last, then God said through Jeremiah और आखिरी में परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा से कहता है that Babylon will come and capture you. कि बाबुल तुम्हें दासत्व में लेके जाएगा। Even Habakkuk says और that. यहाँ तक कि हबक्कुक भी कहता है। And so they were taken as captives. और उन्हें जो है दास करके ले जाया जाता And है। actually it started happening from 606 BC. और 606 BC से ये बातें आरंभ होना चालू हो जाती हैं। Actually there are three deportations. और वहाँ पे 3 बार ऐसा होता है जब वहाँ से लोगों को लेके जाया And in लेकर जाया जाता है। 606 many young people were taken to Babylon. और 606 BC में कई जवान पुरुषों को बाबुल में दासत्व में लेके In जाते हैं। that group Daniel and his friends were there. और उस झुंड के अंदर में दानियल और उसके मित्र थे। And Nebuchadnezzar, the emperor of और Babylon, नबूकदनेस्सर जो राजा था बाबुल का, wanted a very talented, skilled young men to work in his palace. और वो ये चाहता था कि उसके राजमहल में वो ऐसे लोगों को चाहता था जो बड़े उत्कृष्ट और बहुत अच्छे युवक हों। Yeah, during the time of announcements, the passage was read from Daniel chapter 1. और जब सूचना दी गई उसमें दानियेल की किताब उसके पहले अध्याय से बताया गया है। But you can read the entire chapter today. और आज आप उस पूरे अध्याय को पढ़ सकते We हैं। just read few verses from third, fourth verse onwards. और हमने कुछ वचनों को पढ़ा पहले अध्याय के 4थे पद से। So Nebuchadnezzar tells his men, so you choose men of caliber, youth of caliber, and train them in our teachings. और उसने कहा कि ऐसे बुद्धि में प्रवीण और जैसे ज्ञानवान लोगों को तुम चुन लो जिनको हम अपने राज भवन के लिए इस्तेमाल कर सकें, So that they can stand in the king's presence. ताकि वो राजा की उपस्थिति में रह सकें। And the history और says इतिहास बताता है about 75 to 80 Jewish youth were selected. और 75 से 80 यहूदी जवान लोगों को चुना गया। And also the history says they were about 14 to 15 years of age. और इतिहास ये भी बताता है वो 14 से लेकर 15 साल के उम्र के थे। And they were given 3 years of training. और उन्हें 3 साल का प्रशिक्षण दिया गया। And in that group, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, these 4 of them were there. और इस झुंड के अंदर में दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ये चारों लोग थे। We don't know what happened to the other 70 plus
people. और हमें नहीं पता 70 जो दूसरे जवान थे उनका क्या हुआ। They were also Jews. और वो भी यहूदी थे। They also knew the word of और वो भी God. परमेश्वर के वचन को जानते They थे। also knew God और वो Yahweh. भी परमेश्वर को यहोवा करके जानते थे। But then these four men did something. लेकिन इन 4 लोगों ने कुछ किया And that is what we are going to study today. और आज हम उसी का अध्ययन करेंगे। And they were in a crisis. और जब वो संकट में थे Actually, what happened was और क्या हुआ था देखें। the Babylonian training और जो बाबुल का प्रशिक्षण था wanted to brainwash them कि उनके जो पूरा बुद्धि उसको साफ कर देना चाहते थे from their old roots. और उनकी जो भी पुरानी जड़ें थी उसको समाप्त That करना they should चाहते थे। forget their God. वो अपने परमेश्वर को भूल जाए, They should forget their वो people. अपने लोगों को भूल जाए They should forget their customs. और उनकी जो भी रीति विधियां थी उसको भूल जाए। And so the Babylonian adopted 3 brainwash methods. और जो बाबुल के लोग हैं वो 3 इन बातों को करते थे ताकि मनुष्य अपनी जड़ों को खो दे। The first thing was their names were changed. और पहली चीज वो करते थे उनका नाम उन्होंने बदल दिया। But then Bible does not speak about what names you should have. लेकिन बाइबल ये नहीं बताती कि कौन सा नाम आपका होना So चाहिए। Daniel and his friends did not oppose that. और इसलिए दानियेल और उसके मित्रों ने उसका विरोध नहीं You know, किया। it is very beautiful. You can study the name and the meanings of those 4 men. और ये बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है। जब आप इन चारों लोगों के जो नाम है कसदियों वाले वो आप पढ़े तो बहुत अद्भुत लगेगा। And then the second brainwashing method was और जो दूसरा जो उनको पूरी रीति से जड़ खोदने की बात थी, give them the teachings of Babylon. और जो बाबुल की जो शिक्षाएं थी उससे उन्हें पूरी तरह से भर देना। Today, you know, in schools and universities, lot of anti-biblical subjects are taught. और आज के दिनों में हम जानते हैं स्कूल और यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे ऐसे विषय पढ़ाए जाते हैं जो बाइबल के विरोध की बातें बताती हैं। But then the Bible says in 1 Thessalonians chapter 5 verses 20 and 21. लेकिन बाइबल कहती है पहला थिस्सलुनीकी की किताब उसका 5वां अध्याय उसके 20 और 21वें पद में, 5th chapter verses 21 and 22, sorry. और 5वें अध्याय उसके 21 और 22वां पद, It says, test all things and hold fast what is good, abstain from every form of evil. सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। So they learned all the Chaldean teachings. और उन्होंने कसदियों की और मादियों की सारी शिक्षाओं को उन्होंने सीखा। And then the third way of brainwashing them was और जो तीसरा तरीका था जो जिसके द्वारा से अपनी जड़ों को खो सकते थे, to change their lifestyle. उनकी जीवन शैली को बदल दें। They were to eat the food of the king and the drink of the king. और उन्हें राजा की मेज पे जो भोजन दिया जाता जो पीने की वस्तु दी जाती उसमें से वो खाएंगे And पिएंगे। the Bible is very clear about what you can eat and what you should not eat. और बाइबल इसके विषय में बहुत स्पष्ट रीति से कहती है कि आपको क्या चीजें खानी क्या चीजें पीनी When है। we read Leviticus chapter 11 और जब लेवी व्यवस्था 11वां अध्याय पढ़ते and हैं also Deuteronomy chapter 14, और व्यवस्था विवरण उसका 14वां अध्याय, there the Bible speaks about clean and unclean animals, जहाँ पे बाइबल शुद्ध और अशुद्ध जानवरों के विषय में बताती है clean and unclean birds. और शुद्ध और अशुद्ध पक्षियों के विषय में So बताती it है। gives what you should eat and what you should not eat. और वहाँ पे लिखा है आपको क्या चीजें खाना है आपको क्या नहीं खाना है। So then Daniel and his friends decided to obey the word. और लेकिन हम देखते हैं दानियल और उसके मित्रों ने इस बात का निर्णय लिया, ठान लिया कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। We couple of weeks back we read from Joshua chapter 1 and verse 8 और कुछ हफ्तों पहले हमने यहोशू की किताब पहला अध्याय उसके 8वें पद में से पढ़ा था that we should meditate upon this word day and night. कि हमें इस परमेश्वर के वचन पे दिन और रात मनन करना है। Then the Bible says then he will be prosperous and successful. और बाइबल कहती तब हम ऐसा करेंगे तब हम सफल होंगे। And we know these 4 men or 4 boys of Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, they decided to meditate upon God's word. और हम ये देखते हैं कि जो 4 जवान थे दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदnego परमेश्वर के वचन पर उन्होंने चित्त लगाया And they obeyed the word of God. और उन्होंने परमेश्वर के वचन की आज्ञा को माना। So they were in a crisis. और हाँ वो एक संकट
संकट के समय में थे। Sure, they could have said, और हाँ, वो कह सकते थे, already God has forsaken us, परमेश्वर ने तुम्हें पहले ही छोड़ दिया है, and we have lost our land. हमने अपने देश को भी खो दिया, We are now like slaves और here. अब हम यहाँ पर दास हैं, We are prisoners of और war. हम युद्ध के कैदी हैं। When this God has forsaken और us, जब इस परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया why है, should we follow this क्यों God? हम इसके पीछे पीछे जाएं? Why should we follow His और word? क्यों हम उसके वचन को मारें? They could have given a logical reasoning. और उन्होंने ऐसे एक लॉजिकल एक वहाँ पे बात को कह सकते They थे, also could have और told, वो ऐसे भी कह सकते if थे, you don't obey, he will be killed. और अगर हमको हम उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो हमें मार डाला जाएगा, Because it is the king's law. क्योंकि ये राजा की ओर से आज्ञा थी। And we all know if a king's law is broken, that person will be killed. और आप जानते हैं कि राजा की आज्ञा तोड़ी जाए तो व्यक्ति मार डाला जाता है। And also they could have said, और फिर वो भी ये भी कह सकते we थे, could have been administrative officers, हम एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हो सकते but हैं, we will miss those opportunities. और हम वो जो उन मौके उन अवसर को गवा देंगे। But then they decided to obey God. लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि वो परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। If you are in a crisis, अगर आप एक संकट के समय में decide to obey God. आप निर्णय लें कि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे Don't compromise. और समझौता ना करें, Make a determination, make a decision that you will not compromise in any way. और आप इस बात को निर्णय ले लें, इस बात पे आप बिल्कुल अड़ जाएं कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए आप समझौता नहीं करेंगे। So when they decided like this, और जब उन्होंने इस तरह से निर्णय लिया, they understood the crisis management is from God. और उस बात को वो समझने पाए कि ये जो संकट का प्रबंधन है वो परमेश्वर की ओर से, They knew God has a plan. और वो जानते थे कि परमेश्वर के पास एक योजना है। They knew that God is in control of वो situations. इस बात को जानते थे कि परमेश्वर परिस्थिति पे नियंत्रण So my रखे। brothers, my sisters, इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, I want to encourage you. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, God is in control of your life. परमेश्वर आपके जीवन पे नियंत्रण रखे हुए हैं। COVID-19 is not just an accident. और कोविड-19 कोई एक दुर्घटना नहीं है, God has a plan and a purpose. और परमेश्वर के पास योजना और उद्देश्य है, God has a plan for your life personally. और परमेश्वर के पास व्यक्तिगत रीति से आपके जीवन के लिए एक योजना God है, has a plan for your family. परमेश्वर के पास आपके परिवार के लिए योजना है, Depend upon और God. परमेश्वर पे आप निर्भर हो We जाएं, are God dependent. और हम परमेश्वर पे निर्भर होने वाले लोग We हैं, are not independent. और हम आत्मस्वावलंबी नहीं हैं, We cannot be self-dependent. और हम स्वयं पे निर्भर नहीं रह सकते, Because our abilities, our strength, our wisdom, our understanding all are limited. क्योंकि हमारी जो भी योग्यता, जो हमारी कौशल, हमारी जो बुद्धि, वो सब कुछ सीमित है, It is only God and God alone. और सिर्फ परमेश्वर ही है। So these four men decided to follow God. और इसलिए इन चार पुरुषों ने निर्णय लिया कि वो परमेश्वर के पीछे चलेंगे। If our heads are cut, no problem. अगर हमारे सर कलम कर दिए जाए कोई परवाह नहीं, We don't want to stand before God ashamed. और हम परमेश्वर के सम्मुख में किसी शर्म का काम नहीं करना चाहते। Oh, so they decided and determined. और उन्होंने निर्णय ले लिया और ठान लिया, And now we are going to see how God blessed them. और अब फिर देखते हैं परमेश्वर ने कैसे आशीष If you करा। are able to make such a bold decision, और अगर आप ऐसा एक इतना हियाव बड़ा एक निर्णय लेंगे, whatever may be your crisis, आपकी चाहे कैसी भी संकट का समय क्यों ना I हो, want to tell you how God would bless you. मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर कितना अत्यधिक आपको आशीषित The करेगा। first blessing is और पहले आशीष जो है, when we read the first chapter of Daniel and verse 8. और जब हम दानियल की किताब पहला अध्याय उसके 8वें पद को The पढ़ते हैं, Bible says Daniel purposed in his heart that he will not defile himself with the food and the drink of the king, so he appealed to Ashpenaz, the chief of the eunuchs, that let him not be defiled. और वहाँ पे देखते हैं दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे पवित्र ना होना पड़े। Okay, so he told Ashpenaz, that was he was the chief of the eunuchs, और वहाँ पे जो खोजों का प्रधान था अशफनास को उसने कहा, and so the first blessing that they received was boldness. और पहली आशीष जो उन्होंने प्राप्त किया वो था हियाव। See, today when you are in a और crisis, देखिए आज के दिन जब आप संकट में हैं, the greatest need in your life is boldness. और सबसे बड़ी जो आपके जीवन की आवश्यकता है वो है हियाव और दृढ़ता। I gave you the promised words. और मैंने आपको उस प्रतिज्ञा के वचन को दिया, Fear all over. और वहाँ पे लिखा है सब जगह भय है। Okay, that's what we read in chapter 20 and verse 11 of Jeremiah. और यही बात हम यिर्मयाह की किताब उसका 20वां अध्याय उसके 11वें पद
में पढ़ते हैं Sorry, the 10th verse. और क्षमा करें 10वें पद में, Fear on every side. और वहाँ पे लिखा है चारों ओर भय है। You know, whenever you are in a crisis, और देखिए जब कभी भी आप संकट में होते the हैं first reaction is you have fear. और पहला जो प्रतिक्रिया होती है कि आप डर जाते हैं, आपसे भय आता है। See, fear, it can be rational also. और हाँ, जो भय है वो अपने आप एक आपके अंदर में से निकलेगा स्वाभाविक See, तरीके when you से। hear you are having cancer, fear automatically comes. और जब आप सुनते हैं आपको कैंसर हो गया तो एकदम से भय आ जाता Now है। this COVID-19, people are afraid of COVID-19. और अब इस कोविड-19 के कारण से लोग डर रहे हैं। You know, the 12 spies, और वो जो 12 भेद दिए थे, they went to see the land of और Canaan. जब वो कनान देश का भेद लेने They गए returned. और वो वापस लौट कर आए, See, 10 men said the right thing. और जो 10 भेद दिए थे उन्होंने सही बात किया था, But they said the facts. और उन्होंने जो तथ्य थे उन बातों को कहा, Because the people who lived there were like giants. क्योंकि उस देश में जो लोग रहते थे वो दानव के समान थे, And with their strength they cannot overpower. और उनकी ताकत में होकर उस पे वो जय नहीं प्राप्त कर They said सकते, the facts. और उन्हें तथ्य बताए। So we know they were all filled with fear. और हम जानते हैं कि सब लोग डर से भर गए, And because of these 10 men's fear, the entire congregation of Israel were filled with fear. और क्योंकि ये जो 10 भेदियों के अंदर में भय आ गया, उन्होंने पूरे जो इस्राएल की जो प्रजा थी उसके अंदर में भय आ गया। But then these two men, Joshua and Caleb, लेकिन ये जो दो लोग थे, यहोशू और कालेब, they looked beyond facts. लेकिन उन्होंने उस तथ्य के पार देखा, And they looked beyond facts, that is, they looked at God. और वो जो तथ्य के पार देखा अर्थात परमेश्वर को उन्होंने देखा, They understood that God will give them. और उन्हें इस बात को समझ लिया कि परमेश्वर उन्हें जय देगा, Because it was God's promise. क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है God would give that land that flows with milk and कि honey. परमेश्वर उस देश को जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती उन्हें देगा। So you will be bold. अगर आप दृढ़ हैं, You will be bold if you are able to take a strong decision. और अगर आप इस तरह के एक अच्छे निर्णय को लेंगे तब आप हियाव को बांधेंगे। If you are able to trust God, अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करने and if you पाए, are able to depend upon अगर आप God परमेश्वर पे निर्भर हो पाते and हैं take a decision accordingly, और उसके अनुसार निर्णय को लेते हैं, God will give you boldness. परमेश्वर आपको हियाव देगा, Man cannot give you boldness. और मनुष्य आपको हियाव नहीं देगा, Only God can give. सिर्फ परमेश्वर दे सकता And है, they had the boldness. और उनके पास हियाव You होगा। can imagine आप कल्पना कर सकते हैं, Daniel was telling और Ashpenaz, जब दानियल अश्पनास से कहता है, why you are not eating that food? क्यों तुम उस भोजन को नहीं खा रहे हो, And Daniel had to say, और दानियल को कहना पड़ता, our Bible says like this. हमारी बाइबल ऐसा कहती है, Moreover, all the food was offered to idols. और इससे बढ़कर ये जो भोजन है मूर्तियों पे चढ़ाया गया So है, we cannot eat that food. और हम इस भोजन को नहीं खा सकते So हैं, he is a slave और वो एक बंदी है, and he is telling the और master, वो प्रधान से कह रहा है, but he had the boldness. लेकिन उसके पास हियाव था, So in crisis you will have boldness. और इसलिए संकट के समय हियाव आपके पास That's होगा। what we read in the 11th verse of Jeremiah 20. और यही बात हम यिर्मयाह 11:20 में पढ़ते हैं, Because you have God with you. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। If we have small children हमारे पास छोटे बच्चे हैं, and maybe if they are bullied in the school, और हो सकता है कि उन्हें स्कूल के अंदर में कोई डराए धमकाए झगड़ा करे, maybe your child is in the first हो standard, सकता है कि आपका बच्चा पहली कक्षा में हो, maybe the 10th standard boys are bullying your और son, हो सकता है कि 10वीं कक्षा के बच्चे आपके बच्चे को छेड़ते हो, and maybe that child comes and tells you, और आपका जो बच्चा आपके पास आके कहता है, then so the next day you go with the और child, दूसरे दिन आप अपने बच्चे के साथ जाते and हैं, your child looks at that boy, those boys, और जब आपका जो बच्चा उन लड़कों को देखता है, he will not be afraid और वो डरेगा नहीं, because his father is with क्योंकि him. उसका पिता उसके साथ है। Today God Almighty is with you. आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है, The Most High God is with you. और वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ The है, Lord of hosts is with you. सेनाओं का यहोवा आपके साथ So है, you will have boldness. और आपके पास हियाव होगा। Daniel and Shadrach, Meshach, Abednego knew that God is with them. और दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो जानते थे कि परमेश्वर उनके साथ है, That's why eventually in the 11th chapter and the 32nd verse, और इसलिए हम देखते हैं 11वें अध्याय उसके 32वें पद में, Daniel says, और दानियल कहता है, those who do know their God shall be strong and carry out great exploits. और वहाँ पे इस रीति से लिखा है, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। So and we know eventually Daniel did great things. और हम ये भी देखते हैं कि दानियल ने बड़े बड़े कार्य किए। So the first blessing that he will receive is he will have boldness. और पहली आशीष जो आप प्राप्त करेंगे वो है कि हियाव आपके पास आएगा। Means you will not be afraid of your enemy. और इसका मतलब है कि आप अपने
अपने शत्रु से भय नहीं You will not be खाएंगे afraid of that storm. और आप उस आंधी तूफान से नहीं You will डरेंगे not be afraid of that cancer or any other और उस disease. कैंसर या किसी भी बीमारी से आप न डरेंगे You will not be afraid of any crisis that you are facing. और जो भी संकट का सामना आप कर रहे हो उससे आप किसी से भी डरेंगे नहीं When Saul and his army saw और Goliath, जब शाऊल और उसकी सेना ने गोलियत को देखा they were afraid. और वो डर गए They were terrified very badly. और वो थरथराने लगे But then when David comes there, लेकिन जब दाऊद वहां पर आता and है when he sees और Goliath, जब वो गोलियत को देखता but है then he says, who is this uncircumcised Philistine to defy the armies of the living और वो God? कहता है कि ये कत्तरहित फिलिस्तीन कौन है जो सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की जो सेना है उसको ललकारता है Because he had committed his life, क्योंकि उसने अपने जीवन को समर्पित किया that था boldness was given by वो God. हियाव जो था परमेश्वर के द्वारा से Even दिया गया। David was also 14 or 15 years of age. और हाँ जो दाऊद है वो भी 14-15 साल की उम्र का था So you will have boldness. और आपके पास हियाव आएगा Persecutors can come. और जो सताने वाले वो आएंगे Anti-Christian groups can come and attack you. और मसीह विरोधी लोग आएंगे और आपके ऊपर आक्रमण But then करेंगे you will not be afraid. लेकिन आप भय नहीं खाएंगे Even like Stephen, और जैसे स्तिफनुस था when he was stoned to death, और जब उसे पत्थर मार करके the मारा जा Bible रहा says है he was filled with the Holy बाइबल Spirit. कहती है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो And he गया says, I see heaven और वो opened. कहता है मैं स्वर्ग को खुला हुआ And I देखता see हूँ Jesus standing on the right hand of the और Father. वो कहता है कि यीशु मसीह को मैं पिता के दाहिने स्थान पे देखता And हूँ he tells Jesus, Jesus, accept my spirit. और वो यीशु मसीह से कहता है कि यीशु मसीह मेरे प्राण को तू He ग्रहण कर tells ले Jesus, Jesus, do not lay this sin upon these और वो people. कहता है कि लोगों का पाप उनके ऊपर पर नया है प्रभु So they had boldness. और उसके पास हियाव था Today you and I need boldness. आज मुझे और आपको हियाव की आवश्यकता है Elijah had that boldness. और एलिया के पास वो हियाव था And Peter and Paul and John, all these people had that boldness. और जब पतरस योना याकूब जितने भी लोग थे पौलुस उन सब के पास वो हियाव था Sure, we know Peter was a coward. और हम जानते हैं कि पतरस डरता था But then when he was filled with the Holy लेकिन Spirit, जब वो पवित्र आत्मा से भर गया and we know he could be preaching boldly. लेकिन हम देखते हैं बड़े हियाव के साथ उसने प्रचार किया So the first blessing is boldness you will और have. पहली जो आशीष है वो हियाव आपके पास And the आएगा second blessing, और जो दूसरी आशीष है when we read the 9th verse of Daniel chapter 1, और जब दानियल की किताब उसका पहला अध्याय उसके 9वें पद को हम पढ़ते हैं means when Daniel asked Ashpenaz to avoid that food, और जब दानियल ने अश्वनाथ से कहा कि उस भोजन को नहीं खाएगा but then the 9th verse says, और 9वें पद में लिखा है God helped Daniel to receive favor in the sight of that और Ashpenaz. परमेश्वर ने खोजों के प्रदान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी Yes, so you will receive favor. और आप परमेश्वर की ओर से इस कृपा को You पाएंगे will receive favor from your और persecutors. जो आपके सताने वाले उनकी दृष्टि में आप अनुग्रह You पाएंगे will receive favor from your enemies. आपके जो शत्रु उनकी आंखों में आप दया पाएंगे The Bible says in 16th chapter of Proverbs and verse 7, और बाइबल कहती नीति वचन उसके 16वें अध्याय उसके 7वें पद if में our life pleases God, even our enemies will come and make peace with us. और वहाँ पे ये लिखा है कि अगर किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वो उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है So that you will receive favor. और इसलिए आप वहाँ पर अनुग्रह को पाएंगे We read in Esther chapter 2 and verse 15. और हम एस्तर की किताब उसके दूसरे अध्याय उसके 15वें पद में पढ़ते The हैं last part says, and Esther obtained in the favor in the sight of everyone before whom she came. और जब एस्तर है उसने जितने भी लोगों के संपर्क में वही सब की दृष्टि में उसने अनुग्रह पाया See, we know Esther was an orphan girl. और हम जानते हैं जो एस्तर है वो एक ऐसी लड़की थी जिसके माँ बाप नहीं थे And we know from the childhood she had received favor. और बचपन से ही उसके जीवन में अनुग्रह की She दृष्टि received थी favor from her uncle Mordecai. और उसके जो अंकल थे मोर्देकाई उससे उसको अनुग्रह So मिला Mordecai took care of her. और मोर्देकाई ने उसकी देखभाल करी And we know there was a beauty pageant. और फिर हम वहाँ पे देखते हैं कि सौंदर्य प्रतियोगिता हुई And the king wanted to select a queen. और जो राजा था एक रानी का चुनाव करना And चाहता when था Esther went there, और जब एस्तर वहाँ पर गई that's what we read in Esther 2 and verse 15. और यही बात हम एस्तर 2:15 में पढ़ते And हैं Esther received favor in the sight of every person
before whom she came or with whomsoever she came into contact और with. वहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी लोगों के सम्मुख में इस तरह आई, जितने भी लोगों ने उसको देखा, सबकी दृष्टि उसके ऊपर में पड़ी, अनुग्रह उन्होंने किया। So my brother, my sister, be courageous. और इसलिए मेरे भाई और बहनों, आप उत्साहित हो, Be strong. और मजबूत हो जाएं, Be encouraged. और उत्साहित हो जाएं, Be cheerful. और आनंदित हो जाएं, Rejoice. और आनंद मनाएं, Because you will receive the favor. क्योंकि आपको अनुग्रह मिलेगा। We know in 2:52 of Luke, और हम देखते हैं लूका 2:52 में, it speaks about Jesus when he was 12 years of age. और हम देखते हैं यीशु मसीह के लिए जब वो 12 साल की उम्र का था, He received favor in the sight of God and sight of men. और वो मनुष्य के दृष्टि में और परमेश्वर की दृष्टि में उसने अनुग्रह को पाया। Even we read about John the Baptist, he received favor. और हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अनुग्रह पाया। So today we need to have the favor of God upon our lives. और आज हमारे जीवन पे हमें परमेश्वर के अनुग्रह को It चाहिए। is not money or no money. और ये पैसा हो चाहे ना हो, It is not sickness or health. और बीमारी हो या अच्छा स्वास्थ्य हो, Oh, we need to have the favor of हमें God. परमेश्वर के अनुग्रह चाहिए। Oh, God must look upon us with favor. परमेश्वर हम पर अनुग्रह की दृष्टि करे। If we read 26 and verse 9 of Leviticus, और लेवी व्यवस्था 26:9 को जब हम पढ़ते the हैं, Bible says, God says, परमेश्वर कहता है, I will look upon you with favor. और मैं तुझ पर अनुग्रह की दृष्टि I will करूंगा, multiply and increase you. और मैं तुझे बढ़ाऊंगा, And I will remember my covenant with you. और मैं अपनी वाचा को जो तेरे साथ बांधी उसे स्मरण God करूंगा। is telling you, my son, my daughter, परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, you are in a crisis. आप एक संकट के समय But में God हैं, is telling you, और वही परमेश्वर आपसे कह रहा I है, will look upon you with favor. मैं तुम्हारे ऊपर पे अनुग्रह की दृष्टि And I will करूंगा, increase you and multiply और मैं you. तुम्हें बढ़ाऊंगा और फैलाता And I जाऊंगा, will remember my covenant. और मैं अपनी वाचा को स्मरण करूंगा। And we know it was given in the Old Testament. और हम देखते हैं पुराने नियम में ये बातें कही गई, That time they had covenant because of the blood of the Lamb. और उस समय में जो वाचा थी वो मेमने के लहू के द्वारा से बांधी But जाती थी। today in the New Testament we have a covenant with God. लेकिन आज नए नियम में हमारी जो वाचा परमेश्वर के साथ है, And that covenant is sealed by the blood of Jesus Christ. और ये जो वाचा है यीशु मसीह के लहू के द्वारा से उस पे छाप की So गई what है, a great privilege we और have. कितना अधिक सौभाग्य So हमारा we है। can shout hallelujah. हालेलुया चिल्ला सकते हैं, Because we have a covenant with God. क्योंकि हमारी जो वाचा परमेश्वर के साथ बांधी गई है, And God can never break his और covenant. परमेश्वर कभी अपनी वाचा को नहीं तोड़ता। So the first blessing is you will have the boldness in all your और situations. इसलिए पहली बात, आपकी सारी परिस्थिति में आप दृढ़ता और हियाव को रखेंगे, However big your problem is, और it आपकी समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, can be big like a हो mountain. सकता है पहाड़ समान बड़ी It हो, can be strong like a storm. हो सकता है कि एक आंधी तूफान के समान बड़ी It can प्रभावशाली हो, be big like Goliath. और गोलियत के समान बड़ी हो सकती है। But in that situation, God will give you the boldness. लेकिन ऐसी सब परिस्थितियों में परमेश्वर आपको हियाव The देगा। second blessing is you will have the favor of और God. दूसरी आशीष जो परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर पर होगा, And we need to have the favor of God in our lives. और हमें परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में And चाहिए। then the third thing और is, तीसरी जो बात है, when we read verses 10 to 13 of first chapter of Daniel, और जब दानियेल की किताब उसके पहले अध्याय 10 से लेकर 13वें पद को हम पढ़ते हैं, the 10th verse, chief of the eunuch says, और 10वें पद में हम देखते हैं खोजों का प्रधान he कहता says, है, I fear the king, because if the king sees you weak, then he will cut my head off. और वो कहता है कि मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ कि अगर वो तुम्हें कमजोर पाए तो तुम मेरे प्राण को तुम जोखिम में डालोगे। And so then, you know, these four boys, और ये जो चारों लड़के थे, they did not give up. उन्होंने हार नहीं मानी। They did not say, oh, we tried, but nothing is happening. उन्होंने कहा कि हमने कोशिश तो की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। No, they went to another man. In some versions, his name is given as Melzar. और कुछ उस अनुवादों में लिखा गया एक और जो व्यक्ति था जिसका नाम था मेलजार, उसके पास है। This Melzar was just above Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. These four men were under this Melzar. और ये जो मेलजार था वो दानियेल, शद्रक और मेशक और अबेदनगो के ऊपर पे अधिकारी था। So they went to और Melzar वो मेलजार के पास and गए appealed to him, और उससे जाके उन्होंने विनती की Sir, और बोले, श्रीमान, test us for 10 days. हमें 10 दिन तक तू परख, Give us only vegetables and water. हमें सिर्फ साग पात और पानी दे Then दे, you check our faces and the faces of other boys. और तब हमारे चेहरों को, जो दूसरे जो लड़के उनके चेहरों को तू देखना Means the बोलना, other boys who are eating the delicacies of king. और जो दूसरे लोग जो राजा की मेज पे से खाते थे, And then you do what is act. फिर तुझे जो अच्छा लगे वैसा करना। And so the third thing is
they persevered. और तीसरी बात है वो लगातार वहां पे कोशिश करते रहे। See, when you want to receive an answer from और God, देखिए जब आप परमेश्वर से उत्तर चाहते हैं you have to be persevering. आपको लगातार उसके पीछे पड़े रहना You पड़ेगा। know, perseverance is a virtue that is needed in every Christian's life. और ये जो पीछे पड़े रहने वाली जो बात है परसिवियरेंस, वो हर एक जो मसीह विश्वासी है उसके जीवन में वो एक गुण होना We चाहिए। need to have perseverance in our prayer. हमारी प्रार्थना में हमें लगातार वहां पे बने रहना है। Jesus taught many parables, यीशु मसीह ने कई दृष्टांतों को सिखाया and he taught 2 parables on prayer. और उसने 2 दृष्टांतों को प्रार्थना के ऊपर में सिखाया। And in both the parables, Jesus taught about perseverance. और उन दोनों ही दृष्टांतों में यीशु मसीह ने लगातार कोशिशें करने के विषय में So बताया। you need to have perseverance in your और prayer. इसलिए आपको अपनी प्रार्थना के अंदर में लगातार प्रयास करना है। You need to have perseverance in your ministry. आपकी सेवकाइयों में लगातार आपको प्रयास करना You है should not just give up like और ऐसे that. ही आपको हार नहीं मान जाना The है। history says इतिहास बताता है it took William Carey 7 years to get the first convert in India. और भारत के अंदर में विलियम कैरी को 7 साल लगे एक व्यक्ति को प्रभु के पास लाने के It took लिए। 7 years for Adoniram Judson to get the first convert in Burma. और बर्मा में एडोनरिम जो जेडसन था उसको 7 साल लगे एक प्रभु को व्यक्ति को प्रभु के पास लाने के पास। So even in Africa, people who worked, they all say that they waited so many years. और अफ्रीका के अंदर बहुत सारे जो प्रभु के सेवक थे उन्होंने काम कई सालों तक इंतजार And they करे faced lot of crisis. और उन्होंने कई संकट भरे समय को They सामना किया। faced health crisis. और उन्होंने स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को सामना किया। Their children died. उनके बच्चे मर गए And they faced hundreds and hundreds of problems. और कई सैकड़ों तरह की समस्याओं का उन्होंने सामना किया। They had to shift from place to place. उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ा, They persevered. लेकिन वो लगातार प्रयास करते If रहे। they would not have persevered, अगर उन्होंने इस तरह के प्रयास नहीं किए होते then you and I would not known the gospel. तो मैं और आज आप और मैं जो है आज इस सुसमाचार को नहीं जाने But जाते, because they persevered, we have the gospel. लेकिन क्योंकि उन्होंने प्रयास किया आज हमारे पास सुसमाचार है। Because they persevered, we have the Bible in our mother tongue. और क्योंकि उन्होंने प्रयास किया आज हमारी मातृभाषा में बाइबल हमारे पास है। You know, William Carey persevered and translated the Bible into so many Indian languages. और हम देखते हैं विलियम कैरी ने अथक प्रयास करने के बाद बाइबल को कई भारतीय जो भाषा उसके अंदर में उसका अनुवाद किया। Adoniram Judson persevered and translated the Bible into Burma. और बर्मा में Burmese language. और बर्मीज जो भाषा उसमें अडोनिराम ने बाइबल को अनुवादित किया। So persevere. और इसलिए आप लगातार प्रयास करें। Somebody says, किसी ने ऐसा कहा, if you cry at your trouble, और अगर आप अपनी समस्याओं को देखकर रोते हैं it grows double. तब वो दुगनी हो जाती है। If you laugh at your trouble, अगर आप अपने संकट को देखकर हंसते हैं it disappears like a bubble. तो वो एक भाप के जो गुब्बारे के समान वो गायब हो जाती है। It's rhythmic in English. और जो अंग्रेजी भाषा में रिथमेटिक है। So we need to persevere. और आपको लगातार उसमें प्रयास करना है Don't give up. और हार ना माने। Know that you are in a fight. और इस बात को जान ले कि आप एक युद्ध में हैं। Know that you are victorious. और इस बात को जान ले कि जय आपकी है। And you know the Bible says, और आप जानते बाइबल कहती है, Paul says, I never give up. और पौलुस कहता है कि मैं कभी भी हार नहीं मानता। Acts chapter 20 verses 22 to 24. और प्रेरितों के काम की किताब 20वां अध्याय उसके 22 से लेकर 24वें पद। And also in 1 Timothy 1:18, Paul tells Timothy, और पहला तीमुथियुस 1:18 में पौलुस जो है तीमुथियुस से कहता है, you wage a good और warfare. वो कहता है कि एक अच्छी कुश्ती को लड़। And in 1 Timothy 6:12 he says, और पहला तीमुथियुस 6:12 में वो कहता fight है a good fight. कि एक अच्छी कुश्ती को लड़। And Paul talks about himself, और पौलुस स्वयं के विषय में कहता I है have fought a good fight. कि मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है। And so we need to understand that we need to have perseverance, and God gives that perseverance. और हमें इस बात को जानना है कि मैं लगातार प्रयास करते रहना, और परमेश्वर में वो एक ऐसा स्वभाव देता है कि हम लगातार प्रयास करें। You know, when Elijah was praying for rain, और जब एलिया जो था उस पानी के लिए प्रार्थना कर रहा he था, asked Gehazi, go and see. और वो गेहाजी से कहता जाके देख, And he comes and tells, nothing I could see. और गेहाजी कहता मुझे आसमान में कुछ नहीं दिख रहा है। And 7 times he sent to Gehazi. और 7 बार वो गेहाजी को भेजता And the है। 7th time Gehazi और says, 7वीं बार
गयाजी कहता I है, see the cloud of the size of a hand. और वो कहता है कि मैं हाथ के बराबर एक बादल को So देखता he हूँ, persevered in his और prayer. इसने अपनी प्रार्थना में लगातार प्रयास किया। So we know when Daniel and his friends decided that they will overcome this crisis. और जब दानियल और उसके मित्रों ने इस बात का निर्णय ले लिया कि संकट के समय में हम पार हो जाएंगे, And so when they determined, और जब उन्होंने ठान लिया, so God gave them the boldness. तब परमेश्वर ने हियाव दिया, God gave boldness to Peter and John and all those people to preach the gospel. और परमेश्वर ने पतरस और योना और सारे जो जितने भी प्रेरित थे उनको हियाव दिया सुसमाचार प्रचार करने। God gave boldness to Stephen when he was being stoned to death. और जब स्तिफनुस को पत्थरबाज किया जा रहा था, परमेश्वर ने उसे हियाव दिया, Then God will enable you to have favor. और परमेश्वर फिर अनुग्रह देता है हमारे जीवन पर, You will receive favor in the sight of all people. और आप हर लोग की दृष्टि में अनुग्रह को प्राप्त करते Then हैं, you will be able to persevere. तब आप आगे को प्रयास करते As somebody जाएंगे। says, winners never quit, quitters never win. और जैसे किसी ने कहा कि जो जय प्राप्त करने वाले कभी हार नहीं मानते, जो हार जाते हैं वो कभी जय प्राप्त नहीं And कर the सकते। fourth blessing that they और had, चौथी आशीष जो उनके पास थी, we know that is faith. और वो था विश्वास। See, can any difference be there by eating pulse and water for 10 days and others are eating all different delicacies, biryani and all those things? और क्या हम सोच सकते हैं कि सिर्फ साग पात और पानी पीने वाला एक व्यक्ति और जो दूसरा व्यक्ति जो उत्कृष्ट भोजन खाता है, मांस वगैरह खाता है, क्या उनके बीच में कोई फर्क देख सकता है? They eat all now different dry fruits और वो हर तरह के ड्राई फ्रूट्स को खा and रहे थे, have all different delicious non-vegetarian and vegetarian preparations. और जितने भी वहाँ पे जो मांसाहारी और जितने भी तरह की तैयारियां की गई थी, उत्कृष्ट भोजन उन्होंने खाया। But here Daniel and his friends are going to have pulse in the morning, pulse in the afternoon, pulse in the evening. और यहाँ पे देखते हम दानियल और उसके जो मित्र थे वो सुबह दोपहर और शाम में वही दाल और वही चीजें और सब्जी खा रहे थे, And then they were having only water in the morning, water in the noon time, and water in the evening. और सुबह दोपहर और शाम को सिर्फ वो पानी पीते थे। There those boys were having all different kinds of juices and all different kinds of milk and shakes. और वहाँ पे जो दूसरे जो लोग थे उनके पास विभिन्न तरह के उत्तम किस्म के पेय पदार्थ थे जिसे वो पी रहे थे। Daniel and his friends had faith upon God. लेकिन दानियल और उसके जो मित्र थे वो परमेश्वर पे विश्वास किए They थे। believed that God would intervene for them. उन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर उनके लिए हस्तक्षेप They करेगा। knew that God will come. वो जानते थे कि परमेश्वर कार्य करेगा। 2 weeks earlier we saw that God is a God who surprises us. और कुछ हफ्तों पहले हमने देखा कि वो परमेश्वर है जो हमें अचंभित कर देता है। So Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego knew that God would surprise them. और दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जानता था कि परमेश्वर उनके लिए कुछ ऐसा आश्चर्य काम करेगा। As Paul says, I know in whom I believe. और पौलुस कहता मैं जानता हूँ मैं किस पर विश्वास करता हूँ। As the Bible says, by faith they shut the mouth of the lions. और बाइबल कहती विश्वास के द्वारा से उन्होंने सिंहों के मुंह को बंद So कर they दिया। had faith that God would do something. और इसलिए उनके पास विश्वास था कि परमेश्वर कुछ करेगा। 10 days. और 10 दिन 10 in the Bible. बाइबल के अंदर में 10 जो है It speaks about the manifestation of God's power. अब परमेश्वर की सामर्थ के प्रकटीकरण को बताता है। God sent 10 plagues upon Egypt. और परमेश्वर ने जो 10 विपदाएं इस देश के ऊपर में भेजी, God's manifestation of His power. परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया। God gave 10 commandments. परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। The disciples were waiting for 10 days for the Pentecost, for the Holy Spirit. और जो शिष्य थे वो 10 दिन तक पेंटिकॉस्ट के दिन तक ठहरे They were रहे filled with the dunamis और वो power. दुनामिस सामर्थ से भर गए। So they knew in these 10 days God will manifest His और power. इसलिए वो जानते थे इन 10 दिनों में परमेश्वर अपनी सामर्थ को So प्रकट करेगा। believe in God today. इसलिए आज आप परमेश्वर पे विश्वास You are करें। in a crisis. आप एक संकट के समय में Don't worry. आप चिंता ना Don't be करें afraid. और डरे ना, Only believe सिर्फ विश्वास that करें God would come and move for कि you. परमेश्वर आकर आपके लिए कार्य करेगा। God's power will be परमेश्वर manifested. की सामर्थ में प्रकट होगी। There's a beautiful verse in 2 Chronicles chapter 16 and verse 9. और दूसरा अध्याय 16वें अध्याय उसके 9वें पद में एक बहुत खूबसूरत वचन This है। was also in the New Year's message for this year. और इस साल का जो नए साल का जो संदेश था उसमें भी हम इसको And it देखेंगे। says, the eyes of the Lord run to and from the face of the earth to manifest His power to those whose hearts are steadfast upon Him. देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती कि जिसका मन उस
उसकी और निष्कपट रहता उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। And so God is there to do something for you. और परमेश्वर वहाँ पर है कि कुछ आपके लिए करे। So they had faith that God would do something. और उनके पास विश्वास है कि परमेश्वर कुछ करेगा। You believe today that God would do something. आप विश्वास करें परमेश्वर आपके लिए कुछ You करेगा। are hearing this message. आप इस संदेश को सुन रहे It हैं, is not accidental. ये दुर्घटनावश नहीं है, It is foreordained by God. लेकिन ये पहले से परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया Because है, God wants to do something for क्योंकि you. परमेश्वर आपके लिए कुछ करना चाहता है। God who says, let it be done according to your faith. और वो परमेश्वर जो कहता है तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो जाए। Jesus who said, your faith has saved you. यीशु मसीह जिसने कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचा लिया। Jesus who said, great is your faith. यीशु मसीह जो कहता है तुम्हारा विश्वास जो बहुत महान है। Jesus who said, such faith I have not found in Israel. और यीशु मसीह जो कहता है कि ऐसा विश्वास मैंने इस्राएल में कहीं नहीं देखा। May the Lord see your faith और बोले today. में कि परमेश्वर आज आपके विश्वास को देखे। God honors faith. और एक ऐसा जो विश्वास है जो आदर का विश्वास है। And God honors the faith of His people. और परमेश्वर अपने लोगों के विश्वास का आदर करता है। And we know the Bible says without faith it is impossible to please और God. बाइबल कहती विश्वास लेना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। God honored the faith of Jehoshaphat. परमेश्वर ने यहोशापात के विश्वास का आदर When किया। Jehoshaphat heard the prophecy, और जब यहोशापात ने उस भविष्यवाणी को सुना, no need for you to fight. और तुझे अब आवश्यकता नहीं कि तू लड़ेगा, Only you position yourself. सिर्फ तू खड़े खड़े देखना। He could appoint singers ahead of the soldiers. और वो देखता है कि जो सेना थी उसके आगे वो गवाहियों को रखता है। God was pleased with that faith. और परमेश्वर उस विश्वास से बड़ा प्रसन्न होता है। And you know, not only they got victory, और न सिर्फ उन्होंने जय प्राप्त किया, but they got a great plunder. लेकिन बहुत लूट भी उन्हें मिली। So today have faith in God. इसलिए आज आप परमेश्वर पे विश्वास रखें। Faith can heal your sicknesses. और विश्वास आपकी बीमारी को चंगा कर सकता है। Faith will see you victorious in all your crises. और आपके सारे संकट में विश्वास के द्वारा से आप जय प्राप्त कर सकते हैं। Faith will bless you. और विश्वास आपको आशीषित करेगा। So they had faith. और इसलिए उनके पास विश्वास था। God would do something. परमेश्वर कुछ करेगा। And God honored their और faith. परमेश्वर ने उनके विश्वास का आदर And किया। after 10 days, और 10 दिन के बाद when they were checked, और जब उनको जांचा परखा गया and they found these 4 boys, their faces were shining more than those boys who were having delicacies. और इन 4 लोगों का जो मुख है उन सारे लोगों से जो राजा की मेज पे खाते थे उससे ज्यादा अधिक चमक रहा था। Hallelujah. हालेलुया। God will do things for you. और परमेश्वर उन बातों को आपके He लिए is करेगा। not a respecter of persons. और वो किसी व्यक्ति का वो He will do miracles for you in your places of work. और आपके जो कार्यस्थल है उसके अंदर में वो आश्चर्य कर्म He करेगा। will bless you in your school, in your colleges, in your studies. और आपके स्कूल, आपके कॉलेज और आपकी स्टडीज में वो आश्चर्य करेगा। God will prove to others और परमेश्वर दूसरों को ऊपर पे बात को प्रकट that करेगा you are something different. कि आप कुछ अलग हटकर हैं। God could set David in a very high place. और परमेश्वर जो है दाऊद को एक बड़े उत्तम स्थान में रखने And वाला then है। the last blessing I want to share with you this day. और अंतिम आशीष जो मैं आपको बताना चाहता The हूँ, first is you will have boldness. पहला आपके पास हियाव होगा। Second is you will have favor of और God. दूसरा परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह Then रहेगा। the third thing is you will have और perseverance. तीसरा है कि आप लगातार प्रयास करने Fourth पाएंगे। is you will have faith. और And चौथा है विश्वास आपके the पास होगा। fifth thing और is पांचवी बात है you will be first in everything. आप हर बात में प्रथम होंगे। When you read 17 to 20th verses, और जब 17 से लेके 20वें पद तो पढ़ते the हैं, first chapter of Daniel, दानिएल उसका पहला अध्याय we है। read that Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego had 10 times more wisdom than all the astrologers and all the wise men of Babylon. और आप देखते हैं बाबुल के जितने भी बुद्धिमान पुरुष थे, ज्ञानी थे, उन सब से 10 गुना बढ़कर शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानिएल के पास बुद्धि थी। So God will make you the head. और परमेश्वर आपको सिर ठहराएगा। God will keep you above. परमेश्वर हमेशा आपको ऊंचाइयों पर God will रखेगा। give you such wisdom and understanding. और परमेश्वर आपको ऐसी बुद्धि और समझ देगा। God gave wisdom to Joseph और परमेश्वर ने यूसुफ को बुद्धि दिया to overcome the crisis of famine. और उस अकाल की जो संकट थी उसमें से पार God निकलने gave David the wisdom to overcome
Goliath. और परमेश्वर ने दाऊद को बुद्धि दिया कि कैसे गोलियत पे जय प्राप्त करें। God gave the anointing to Paul, Peter, John, James, all those apostles and the first century believers, so they can testify with all power to the people with whomsoever they come into contact with. और परमेश्वर ने पतरस, याकूब, यूहन्ना सारे प्रेरितों को अपने अभिषेक से भर, अपने सामर्थ्य, ताकि वो हर एक को वो परमेश्वर के वचन को हियाव से सुना सके। God will keep you above. परमेश्वर हमेशा ऊंचाइयों पे आपको And रखेगा। not only और that, ना सिर्फ इतना, if you read the 21st verse of the first अगर chapter, आप पहले अध्याय की 21वें पद को पढ़ें, Daniel continued there till the first year of Cyrus. और वहाँ पे क्रूसो राजा के पहले वर्ष तक दानियल बना रहा। So that means he was there in that high position for almost 70 to 72 years. और इसका मतलब है कि ये एक इस ऊंचे स्थान पर वो 70 से 72 साल तक बना रहा। Babylonian kings came and they went. और बाबुल के राजा आके चले गए। Nebuchadnezzar, नबूकदनेस्सर चला his गया, son, उसके बच्चे his grandson, और उसके जो परपोते then थे। Medo-Persian empire came. और फिर हम देखते हैं मादियों का जो राज्य आया, Oh, and Daniel was there लेकिन दानियल फिर भी वहीं था, in the highest position, उस उच्च स्थान पर, next to the king. और राजा के बिल्कुल अगले स्थान पर And he had था। such wisdom and understanding. और ऐसी समझ और बुद्धि उसके पास थी। You know how God gave him the wisdom to know the dream and the interpretation. और परमेश्वर ने उसे ऐसी बुद्धि और समझ दी कि वो स्वप्नों का दर्शन और स्वप्न बता सकता You था। know, usually when other people have dreams, और हम जानते हैं जब अधिकतर लोगों के पास स्वप्न होता है, they come and ask for the interpretation, sharing the dream. और वो स्वप्न बताकर बोलते हैं इसको बताओ कि इसका अर्थ क्या होगा। But here Nebuchadnezzar says, यहाँ पे नबूकदनेस्सर राजा कहता है you have to tell the dream and also the कि interpretation. तुम्हें उस स्वप्नों को भी बताना होगा, साथ में उसका फल भी बताना होगा। All his astrologers और said, जितने भी उसके साथ ज्योतिषी थे, no human being can do this. वो कहता है कि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है। But God revealed the dream and the interpretation to Daniel. लेकिन परमेश्वर ने दानियल के ऊपर पे उस स्वप्न को उसका फल भी बता In दिया। your places of work, और आपके कार्यस्थल में believe God that He would take you to the high place. और विश्वास करें परमेश्वर पे कि आपको ऊंचे स्थानों पे लेके God जाएगा। will give you such wisdom and understanding. परमेश्वर आपको ऐसी बुद्धि और समझ देगा, And more than all the educated colleagues, you will be able to excel. और जितने भी आपके साथ काम करने वाले हैं जो बहुत उत्तम कहलाए तो जाते हैं, लेकिन उनसे भी आपको बढ़कर बनाएगा। God will make you the head. और परमेश्वर आपको सिर बनाएगा। Hallelujah. Hallelujah. What a mighty God we और serve. कैसे सामर्थ्य परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, And He wants to give us victories. और वो हमें जय देना चाहता He है, wants to give us victories in our crisis. और हमारे संकट के समय वो हमें जय देना And चाहता the है। Bible is the book that will teach you how to overcome every crisis and every disaster. और बाइबल वो किताब है जो हमें सिखाती कि किस रीति से हमारे संकट से पार I चले। have just shared with you from one case study. और मैंने आपको सिर्फ एक केस स्टडी से बातें बताई And है, you know the Bible is full of such और हम illustrations. जानते हैं बाइबल ऐसी सारी घटनाओं से भरी हुई है, Study for yourself. और आप स्वयं के लिए इसे It पढ़ें। is such a wonderful book. और इतनी अद्भुत किताब है, And this book will bless you immensely. और ये जो किताब है बहुत अत्यधिक रीति से आपको आशीषित Because करेगा, the one who has given us this book is God Almighty. क्योंकि जिसने हमें किताब दी है वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर And है, He is your Savior and He is your Redeemer. और वही आपका उद्धार करता और आपका छुड़ाने वाला He है, is your Lord and He is your और God. वही आपका प्रभु है, वही आपका परमेश्वर He है, is your Savior and He is your और Redeemer. वो आपका उद्धार करता और आपका छुड़ाने वाला He is है। the King of Kings and the Lord of वो Lords. राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, And He is your beginning and He is your end. और वही आपका आरंभ है और वही आपका अंत भी He है, is your Alpha and the और Omega. वही आपका अल्फा और ओमेगा है। And I know in whom I believe. अब मैं जानता हूं मैं किस पर विश्वास करता But do हूं, you know in whom you believe? क्या आप जानते हैं कि आप किस पर विश्वास करते May हैं? God have mercy upon every one of और us. परमेश्वर हमें से हर एक के ऊपर पर अनुग्रह In करे, your crisis, remember और God. संकट के समय में आप परमेश्वर को स्मरण In your रखें, crisis, you call upon संकट के God. समय परमेश्वर को पुकारें, As God says, in the day of trouble, you call unto me, I will deliver you, and you will glorify my और जैसे name. परमेश्वर ने कहा कि संकट के समय तू मुझे पुकार तो मैं यदि सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा तो मेरी महिमा करेगा, And so call upon Him today. और इसलिए आज आप उसे पुकारें, Wherever you are. चाहे आप कहीं पे भी क्यों ना हो। Maybe you are in your home. हो सकता है आप अपने घर में हो, Maybe you are traveling when you are hearing हो this. सकता है कि आप यात्रा कर रहे हो जो आप इससे सुन रहे हो, Maybe you are discouraged and depressed today. हो सकता है आप निरुत्साहित हो और निराशा में हो, Call upon God. परमेश्वर को पुकारें। I want to encourage you. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ,
Jesus is standing next to you. यीशु मसीह आपके बगल में खड़ा है। Call him उसे पुकारें, as the blind man और called. जैसे उस अंधे व्यक्ति ने पुकारा, Jesus, son of David, have mercy on me. यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। You call upon him. आप उसको पुकारें, Jesus, have mercy on me. यीशु मुझ पर दया कर। Before he crosses you, call upon him. और इससे पहले कि आप आगे बढ़े, आप उसको पुकारें। Before he leaves you and goes you call upon और him. इससे पहले कि वो आपको छोड़कर आगे बढ़ जाए, आप उसे पुकार उठे। Because the blind man knew that was his last and the only chance. क्योंकि ये अंधा व्यक्ति जानता था कि ये सिर्फ उसके जीवन का एकमात्र So अवसर he है, began to call upon Jesus. और इसलिए वो जोर से पुकार के चिल्लाने लगा। And people rebuked him. और जब लोगों ने उसको चुपकाराया, He called upon Jesus even more. और वो और अधिक चिल्लाने लगा। And Jesus stopped. यीशु मसीह रुक गया, And we know Jesus healed him, और यीशु मसीह ने उसे चंगा किया gave him eyesight. और उसको वापस दृष्टि दी। Today Jesus will stand when you cry. और आज जब आप यीशु मसीह को पुकारेंगे तो वो आपको सम्मुख में खड़ा हो Jesus जाएगा। is hearing your voice. यीशु मसीह आपकी आवाज को सुन The रहा है। Bible says he hears the cries of ravens. और बाइबल कहती है कि वो आकाश के पक्षियों के चिल्लाने को सुनता है। If he hears the cries of ravens, how much more he will hear your cry and my और cry. जब वो कौवों के चिल्लाने की आवाज को सुनता है तो मेरे और आपके चिल्लाने की आवाज We को know the सुनेगा। crow, the ravens are the ugliest of the birds. और हम जानते हैं जो कौवे हैं सबसे अच्छे नहीं दिखने वाले पक्षी हैं। And we are created in the image of और God. हम जो परमेश्वर की समान बने गए हैं। The raven's cry is only for food. और जो कौवे सिर्फ भोजन के लिए But पुकारते हैं, our cry is for different things. लेकिन हमारी जो पुकार है विभिन्न बातों के लिए है। So crying, ravens don't have a purpose or a plan of God. और जो कौवे उनके पास परमेश्वर की योजना उद्देश्य नहीं But है, you and I have a plan and the purpose of God. लेकिन मेरे और आपके पास परमेश्वर की योजना और उद्देश्य है। Jesus did not die for the ravens. यीशु मसीह कौवों के लिए नहीं मरा, But Jesus died for you and me. लेकिन यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मर गया। So call unto Jesus और today. इसलिए आज यीशु मसीह को आप पुकारें। Oh Jesus, Son of God, have mercy on me. यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र मुझ पर दया कर। Jesus, my Savior, receive, have mercy on me. यीशु मसीह मेरे उद्धारकर्ता मुझ पर दया कर। Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु मसीह के we are नाम, thankful to you for this word. आज इस वचन के लिए धन्यवाद करते Thank हैं। you, Lord, for your rhema that has come through. धन्यवाद उस रहमा वचन के लिए जो आपके द्वारा से आया। Lord, you know the situation of everyone who is hearing. और प्रभु हम जानते हैं हर एक की परिस्थिति जो इस वचन को सुन रहे हैं, Perform wonders and miracles. उनके लिए अद्भुत चिन्ह चमत्कार Let करें everyone overcome their crisis. और हर एक जन अपने संकट में से पार हो जाए। Give them that boldness. उनको वो हिराव दें, Give them that faith. उन्हें विश्वास दें, Give them that और perseverance. उन्हें वो प्रयास करने का Give अनुभव them दें, that favor. उन्हें वो अनुग्रह दें And make them the first. और उन्हें उत्तम रखें। And Lord, bless everyone, we pray. और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमको आशीष Bless दें, every family, we pray. हर एक परिवार को आप आशीषित Bless करें, every church, we हर pray. एक कलीसिया को आप आशीषित करें, Bless every city, we pray. हर एक शहर को आप आशीषित करें, Bless every nation, we pray. हम हर एक देश को आप आशीषित Lord, करें। let this COVID-19 crisis be overpowered. और ये कोविड-19 की जो संकट का समय है उस पे हम जय प्राप्त Lord, करें। people with cancer be healed in the name of और जो लोग Jesus. कैंसर से ग्रसित है यीशु के नाम में चंगे हो In जाए, the mighty name of Jesus. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम Every में। cancerous cell and tissue and growth be consumed by a fire from heaven. और हर एक जो कैंसर की कोशिकाएं जो भी चीज है वो जो स्वर्ग की अग्नि उसके द्वारा से वो नाश हो जाए Lord, miracles happen. और प्रभु आश्चर्यकर होने लगे। We give glory and honor. हम आपको आदर और महिमा देते हैं, In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना को मांगते And let us all say amen and हैं और हर एक amen. जन कहे आमीन और आमीन। May the grace of Lord Jesus Christ and the love of our Heavenly Father and the fellowship and the anointing and the power and the gifts and the guidance of the Holy Spirit, our Comforter, be available to every one of us now and forevermore. हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम, उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनुग्रह, सहायक पवित्र आत्मा की सहभागिता और सामर्थ और अभिषेक और वरदान और मार्गदर्शन हमें से प्रत्येक को प्राप्त होती रहे। आमेन आमेन। और हमारा विश्वास है परमेश्वर आपसे बोला और आपको आशीषित किया। We trust and believe that God has blessed you, spoken to you. Enjoy the blessings of God and overcome every one of your crises. आपके हर एक के संकट से आप जीवंत होने पाए। प्रभु सबको आशीष दें। God bless you. Thank you. Amen.